Hi guys, good morning. So let's start with the part of current electricity. So what we discussed, around 2 days before. So first of all, let's summarize. We did discuss the word current. Current means the flow of charges in one direction or the flow of electrons in one direction can be known as current. What do you mean by potential? Potential, the work done to require or the work done to carry a charge from infinity to that particular point would be known as potential. What do you mean by potential difference? The work done to carry a unit positive charge, okay, from one point to other point in a circuit or to move it in a closed circuit will be known as potential. What was Ohm's law? According to Ohm's law, at constant temperature, potential is directly proportional to current. When we are going to remove the sign of proportionality, there is going to be a new letter which is known as constant, and that is known as resistance. The unit of resistance was, so आज वहीं से start करते हैं. The unit of resistance is what? Is ohm. It's a symbol like this, okay? And the unit is ohm, OHM, okay? So the unit of resistance is ohm, fine. Now, उस दिन हम लोगों ने देखा that resistance is directly proportional to length of the conductor. Resistance is inversely proportional to the area of the wire. So combining those, we will get R is equals to rho L upon A, where rho means resistivity. Okay. Now very important part, silver has got the least resistivity. Silver की value resistivity की सबसे कम होती है. Okay. While आप आयरन की बात करो या उस तरह के मटेरियल की बात करोगे उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है. तो which is the best conductor? Silver. But then why don't we use silver wires? We don't use silver wires because they are so expensive. Imagine करो किसकी घर पे चोरी होगी तो जो चोर आएगा वो लॉकर में से कुछ भी लेके नहीं जाएगा, वो वायर चुरा के लेके जाएगा. इसीलिए हम लोग सिल्वर नहीं यूज करते. ओके. So now, so resistance की unit is ohm and R is directly proportional to L as I told you. Larger the length of the wire, more heat will be generated. जितना आप लंबा वायर लोगे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उतने लॉसेस हैं. ओके, तो उतना नुकसान है आपका. So use smaller wires. R is inversely proportional to area. So R is inversely proportional to area का मतलब क्या हुआ? That means that जितना मोटा वायर उसका उतना कम रेजिस्टेंस, जितना पतला वायर उसका उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस. ओके. R is equals to rho L upon A and rho is known as resistivity. It is that particular property of the material of the wire which opposes the flow of current. Okay. So ध्यान रखना ये constant किसी पर भी depend नहीं करता. While resistance will depend on L, resistance will also inversely proportional to area, but rho does not depend on anything. हर एक मटेरियल के लिए ये पर्टिकुलर सब्सटेंस या ये पर्टिकुलर पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा. कौन सा? रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द इक्वेशन और इन अ इक्वेशन. ओके. सो यदि कभी किसी ने बोला, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिया था, एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी गिव द आंसर्स, नॉट ऑलमोस्ट एवरीबडी, आई थिंक ओनली 2 and 3 or 4. So they said that yes, we'll try and use the AC, which will be having copper condensers, or will be having copper wires, or will be having copper something. So ध्यान रखना guys that copper की जब भी आप कभी कोई भी चीज़ ले रहे हो, so of course उसकी efficiency better होती है, वो heat कम करेगी, वो losses कम करेगी और आपका electricity का बिल भी कम आएगा, and उसकी life भी काफ़ी long होती है. Okay. पर ध्यान रखना that normally aluminium सस्ता क्यों होता है? Because copper का extraction from metals and non-metals is a bit more tedious process as compared to aluminium. Aluminium की availability काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा है, and that's the reason why उसकी cost कम है. Okay. Now, so ये हो चुका हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक. रेजिस्टेंस को जैसे मैंने बोला केवल सिंबल से ऐसे शो करते हैं. ओके. सो आई टेल यू अ फनी इंसिडेंट. सो से सपोज इवन पूरी इंजीनियरिंग करने के बाद में भी कई लोगों को एक्चुअली में लगता है कि रेजिस्टर का मतलब ये होता है. गाइज, व्हाट इज रेजिस्टर? Resistor is nothing else
बट अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू अपोज करंट, उसमें अलग अलग तरह के वायर्स हो सकते हैं, मोटे वायर, पतले वायर, अलग मटेरियल के वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यदि आपको लग रहा है कि वायर के अंदर इस तरह का शेप जहां पर भी होगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इट इज रॉन्ग गाइस, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज जस्ट अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू शो दिस। ओके, वायर को हाथ लगाओगे तो वायर पे कहीं पर भी ऐसे जिगजैग जिगजैग नहीं दिखेगा, ये वायर के अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप रोकते हो। गाइस ऑल्सो उस दिन के लेक्चर में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था that the direction of the electron will always be from negative terminal to the positive terminal, while the conventional or the orthodox or the old definition, और जिसके हिसाब से पूरी दुनिया आज भी चल रही है, is from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery. Okay, now अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था that is Ohm's law, which was equals to V equals to IR, और I should be equals to V upon R. ओके, बट आप ही लोगों ने बोला था पहले, अपन ने डिस्कस किया था V इक्वल्स टू W बाय Q, वेयर पोटेंशियल इट शुड बी इक्वल्स टू W बाय Q, राइट? व्हाट इज W? वर्क डन. व्हाट इज Q? चार्ज. चार्ज की यूनिट कूलम. व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? Q इज इक्वल्स टू NE. ओके, नाउ V इक्वल्स टू W बाय Q, तो कैन आई पुट V की जगह पर यहाँ पर W बाय Q? सो लेट्स पुट V की जगह पर, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया W बाई QR, चलेगा? ओके, सो W should be equals to IR into Q. Okay, so W should be equals to what? IR into Q. Now ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, but this is just to explain you that you can make n number of formulas according to your own choice. सर और कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं? वेरी सिंपल, आप चाहो तो W की जगह पर, मतलब W की जगह W ही लिखोगे, I की जगह पर कैन यू पुट Q अपॉन T? कुछ याद आ रहा है? मैंने Q अपॉन T क्यों पुट किया? बिकॉज करंट कैन बी डिफाइंड एज Q अपॉन T. सो इसका मतलब है वर्क डन शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर R बाय T. Got it? So that means W should be equals to Q square R by T. That's so simple, right? So ध्यान रखना by the way that this particular formulas can be used for solving n number of questions. तो फिर से रिपीट करते हैं, मैंने पहले क्या किया? V equals to IR, Ohm's law. V equals to W by Q, potential difference. I is equals to V upon R. It should be equals to V की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया? W by Q, work done to carry unit positive charge. R की जगह R ही था, W को यहीं रखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? IRQ. W is equals to I की जगह पर Q upon T, RQ. W is equals to Q square R by T. Did you understand this? अब मान लो किसी ने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, I would put something else. मुझे कुछ तो और वाला पार्ट पुट करना है. सो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यूज. अब R की जगह पर क्या डाल सकते हो? R शुड बी इक्वल्स टू रो L अपॉन A डाल दो. R शुड बी इक्वल्स टू V अपॉन I भी डाल सकते हो. करेक्ट? So you can put any value whatever you feel like and you can make a numerical out of that. Abhi of course we'll discuss a lot of numerical. Now let's talk about first of all the word series and the parallel circuit, and इस वाले derivations पे हम लोग फिर से आएंगे. And we'll study Joule's law जो आपको इसी पर ही आपको help करेगा. Now let's see the word resistance. Resistance in series. Now what do you mean by series? सीरीज का मतलब होता है जब भी कभी किसी भी बैटरी या किसी भी चीज का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, फिर उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, फिर उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह का जब भी सर्किट कनेक्टेड होता है वेयर नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, I'm sorry, then such kind of circuit will be known as series circuit. अब यदि मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अंदर क्या हो जाएगा?
It's a very simple circuit. See this. Let us say suppose मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर और एक और रेजिस्टेंस है कुछ यहाँ पर, एंड मैंने इसको एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया या एक सेल से ज्वाइन कर दिया, सॉरी, बैटरी के अंदर मल्टीपल सेल लगते हैं, ओके। ये रहा मेरे पास में R1, ये रहा मेरे पास में R2, ओके, एंड दिस इज द सोर्स। सोर्स क्या होगा? पोटेंशियल। ध्यान रखना, इसी पोटेंशियल को हम लोग सेल या बैटरी के अंदर EMF भी बोलते हैं। EMF means electromotive force. Electromotive force is nothing else but is potential, the maximum potential which can be drawn from a cell. एक बैटरी में से या एक सेल में से आप कितना पोटेंशियल निकाल सकते हो, that is known as total potential, और EMF बोलते हैं उसको। खैर, अभी आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे। सीरीज का मतलब क्या होगा? जब भी कभी बैटरी से अपन ने हमेशा क्या बोला था? करंट का ऑर्थोडॉक्स डायरेक्शन या इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो ये यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ट्रैवल करेगा, राइट, फ्रॉम ओवर हियर, फ्रॉम ओवर हियर, फ्रॉम ओवर हियर, फ्रॉम ओवर हियर, like this, and it will enter the negative side of the terminal. That's how a circuit gets completed. Okay, now ये यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड यहाँ पर गया। अब कॉमन सेंस सोचो, यहाँ से द सो कॉल्ड करंट स्टार्टेड फ्लोइंग आए। जितना करंट यहाँ पर गया उतना ही करंट यहाँ पर है, उतना ही करंट यहाँ पर है, उतना ही करंट यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ पर वापस अंदर। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन के अंदर कोई भी ब्रांचेस नहीं होते हैं, करंट डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब जब भी कभी कोई बोलेगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कनेक्शन, देन आप सिंपल पहले ये ध्यान रखना, व्हेन पॉजिटिव साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड एंड नेगेटिव साइड इज कनेक्टेड टू अदर्स डिवाइस पॉजिटिव। जब एक पॉजिटिव किसी भी नेगेटिव से कनेक्टेड है, मान लो रेजिस्टेंस के अंदर ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब एक बार ढंग से देखो कौन किससे कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, देन नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, देन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, एंड देन दिस is coming back. Okay, so always remember series connection के अंदर current does not get divided, तो current remains constant, current remains constant, very very important point। सीरीज कनेक्शन में कभी भी करंट डिवाइड नहीं होता, वो जितना इसमें रहेगा उतना ही इसमें रहेगा। अब बच्चों वाला क्वेश्चन, यदि इसमें 2 एम्पियर का करंट है तो बताओ इसमें कितने का करंट होगा? 2 एम्पियर का। एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, उसमें कितने का होगा? 2 एम्पियर का, बिकॉज करंट तो चेंज हो ही नहीं रहा। बट ऐसे सर्किट के अंदर पोटेंशियल कीप्स ऑन चेंजिंग। क्यों? पोटेंशियल यहां से जा रहा है, यहां पर गया, अब जैसे ही जब ये रेजिस्टेंस है इसने इसको अपोज करना स्टार्ट करा तो पोटेंशियल की कुछ वैल्यू कम होना चालू हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप होना चालू हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आगे वाले को पोटेंशियल कितना मिलेगा? सेम मिलेगा? नहीं, थोड़ा सा कम मिलेगा। और आगे वाले को और कम, और आगे वाले को और कम, एंड द पोटेंशियल विल कीप ऑन ड्रॉपिंग कंटिन्यूअसली। Of course, we cannot use the word potential will keep on dropping continuously, but yes, potential would drop, but it will also depend on the kind of resistance applied. आपने कितना रेजिस्टेंस डाला हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। So जब भी कभी कोई बोलेगा what happens in a series connection, in a series connection, the positive side of the battery or the cell is always connected to the negative side, and the negative is connected to the positive side. Such a combination of cell will be known as series connection. In resistance, when positive side of the resistor is connected to the negative side and negative is connected to other resistors positive, other दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, खुद से नहीं, ओके, दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, then such kind of series will be known as, combination will be known as series combination. ये हो गया second point. In series combination, current remains constant. Third point, in series combination, potential will keep on changing.
सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट नहीं चेंज होता है, वाइल पोटेंशियल चेंज होता रहता है। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, कुछ V1, वाइल यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, V2, बट यहां पर करंट कितना होगा, I, और यहां पर करंट कितना होगा, I. Current will remain the same, correct? So very important part, resistance will change, potential will change, but current will never ever change in a series connection. अब सीरीज कनेक्शन का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ वो भी आपको बता देता हूं। आपके घर के अंदर स्विच बोर्ड लगा होगा जहां पर बहुत सारे स्विचेस होंगे, उन स्विचेस के साथ में फैंस, ट्यूबलाइट्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, वीडियो गेम्स, चार्जर्स, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं अलग 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 अलग। क्या ऐसा कभी होता है कि आपने एक ही स्विच ऑन किया और सारी चीजें ऑन हो गई, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, समथिंग 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 लाइक दिस? नहीं ना। इसका मतलब है जब भी कभी एक ही स्विच से बहुत सारी चीजें चालू हो जाती हैं, then such kind of connection will be known as series connection. Okay. Now, what exactly do you mean by the word series connection? Suppose करो मेरे पास में एक कोई वायर है, मैंने यहां पर सपोज करो मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया, मैंने यहां पर वंस अगेन एक बल्ब कनेक्ट किया, मैंने यहां पर वापस से एक बल्ब कनेक्ट किया। Okay, so this will be positive, negative, positive, negative, positive, negative, and this is connected to the cell, something like this. Now the problem is, मान लो ये मैंने ये switch, hopefully ये आपको मतलब मालूम होगा इसका कि कौन सी कंडीशन में है। So now right now the switch is in closed condition. Closed का मतलब है ऑन है, ऑन है मतलब करंट यहां से जा रहा है। तो क्या होगा, तीनों के तीनों बल्ब एक साथ ग्लो करना चालू कर देंगे। बल्ब नंबर 1 विल ग्लो, 2 विल ग्लो एंड 3 विल ग्लो, तीनों के तीनों ग्लो करना चालू कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल विल कीप ऑन चेंजिंग। तो क्या तीनों के ग्लो सेम आएगा? नॉट एग्जैक्टली, किसी का कुछ कम, किसी का कुछ ज्यादा आएगा। ऑन द अदर हैंड R1 एंड R2 एंड R3 तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग अलग। नाउ प्रॉब्लम इज, अभी मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, जब भी कभी रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है तो तीनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, एंड रेजिस्टेंस इज नॉट अ गुड थिंग इन अ सर्किट। क्यों? रेजिस्टेंस की वजह से हीट बढ़ती है, हीट की वजह से सर्किट बहुत गर्म हो जाएगा एंड इट माइट कैच फायर, या शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ओके, नाउ सो व्हाट इज सीरीज? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कनेक्शन के एडवांटेज क्या है, पहले उससे स्टार्ट करते हैं, फिर डिसएडवांटेज पे आते हैं, फिर डेरिवेशन पे आते हैं। सीरीज कनेक्शन का एडवांटेज नंबर 1, ऑफ कोर्स इट इज लेस एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली, ओनली वन टाइम कॉस्ट। जब आप इसको सेटअप करते हो इट इज वन टाइम कॉस्ट, इट इज लेस एक्सपेंसिव। क्यों? वायरिंग बहुत कम जाती है, एक ही के अंदर आपने तीनों के तीनों बल्ब लगा दिए, स्विचेस या बोर्ड्स बहुत कम लगेंगे, एक स्विच ऑन करोगे सारे घर की ट्यूबलाइट्स ऑन हो जाएंगी। दिस इज द ओनली एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस बहुत सारे, जब आपने एक ही स्विच ऑन किया तीनों के तीनों जलना चालू हो जाएंगे। मान लो ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, it has now become altogether bad. Okay, it has turned bad. Now if it has turned bad, it is not letting on, ये खराब हो चुका है बल्ब, तो क्या ये जलेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज करंट तो यहाँ से आगे ही नहीं जा पा रहा, सर्किट तो हुआ ही नहीं है पूरा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो कोई भी एक यदि खराब हो गया या वायर कहीं से भी बीच में से एक में कुछ क्रैक आ गया, ये पूरी की पूरी लाइन जलना बंद हो जाएगी। दैट इज द प्रॉब्लम विद सीरीज कनेक्शन। Okay, now let's try and do certain derivation of series connection. Series connection का advantage number 1, sorry, disadvantage number 1 वो तो मैंने आपको बता दिया। disadvantage number 2 पर आते हैं। disadvantage number 2 will be what? क्या लगता है क्या होगा? That is, जब भी कभी आपने स्विच ऑन किया तो हर बार बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, because resistance will always get added up. If resistance will get added up, that means total resistance should be equals to R1 plus R2 plus R3. पूरा का पूरा रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, हीट बहुत बढ़ जाएगी। यदि आपने वायर बहुत पतला यूज किया है तो वो पूरा का पूरा वायर एक बर्न हो जाएगा। इसीलिए आप कभी भी चेक कर लो, आपके घर में जो भी गीजर होते हैं, इलेक्ट्रिकल गीजर या जो भी इलेक्ट्रिकल आयरन होती है, उनके वायर देखना बहुत मोटे मोटे होते हैं, वेरी थिक। बाकियों के वायर देखोगे उतले,
उतने ज्यादा मोटे नहीं होते। मोबाइल चार्जर बहुत पतला सा वायर होता है, क्यों? उसको उतने करंट की जरूरत ही नहीं होती, वो मिली एम्पियर पे काम करता है, मिली एम्पियर। ना यहाँ से दो टर्म्स और आ जाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मिली? मिली का मतलब होता है MA, ओके, एंड इट इज 10 to the power -3 एम्पियर। सो जब भी कभी किसी ने कोई मिली एम्पियर दिया है, प्लीज कन्वर्ट दैट न्यूमेरिकल इनटू 10 to the power -3 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देना, एंड देन से ओके। किसी ने बोला 2 मिली एम्पियर, तो 2 into 10 to the power -3 एम्पियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वंस अगेन द सीरीज कनेक्शन एंड देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे आता है। सो मैंने यहाँ पर ले लिया R टोटल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। कॉमन सेंस है, यहाँ पर मेरे पास में आ चुका है R1 + R2। मैं इस वाले फिगर को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं। सो R total शुड बी इक्वल्स टू R1 + R2। मुझे ये इक्वेशन डिराइव करनी है, तो मैं डायरेक्टली तो ऐसे ले नहीं सकता इक्वेशन। तो स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले ये चीज चेक करो, इनमें कौन सी चीज है जो चेंज हो रही है? रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं, बट वो तो हमें निकालना है, और पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जब पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, टोटल पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू V1 + V2। देखो करंट तो सेम ही है, तो करंट को तो ऐड करने का फायदा ही नहीं है। टोटल पोटेंशियल कितना जा रहा है? जितना कुछ इसमें गया होगा, बाकी बचा हुआ इसमें गया होगा। तो V1 या टोटल पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू V1 + V2। V टोटल शुड बी इक्वल्स टू V1 की जगह पर क्या मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ? और ओम्स लॉ को लर्न करने का बहुत ही पुराना तरीका और सिंपल तरीका है, एक सलमान खान की मूवी आई थी नोन एज वीर, ओके। तो आप समझ जाओ, वीर, रिमेंबर, ये कोई मतलब कोई बुक में लिखा हुआ मेथड नहीं है, दिस इज ओनली अ ट्रिक। वीर, ओके। तो मैंने वीर को लगा दिया, तो वी की जगह पर क्या डाल सकता हूँ? ईर। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया IR, I तो कांस्टेंट ही है, और V1 के लिए R1 आ गया, प्लस V2, I तो कांस्टेंट ही है, R2। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? कॉमन निकालते हैं, I ब्रैकेट R1 + R2। VT की जगह पर भी क्या डाल सकता हूँ? IR टोटल। V की जगह पर IR टोटल, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2। देखो कुछ कांस्टेंट कुछ कट सकता है क्या? I से I कैंसिल। सो व्हाट इज द फाइनल डेरिवेशन? RT इज इक्वल्स टू R1 + R2 एंड दैट्स ऑल, इट्स डन। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन में जब भी कभी आप कोई भी चीज कनेक्ट करोगे, तो ध्यान रखना आपके यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आएगा। तो मे बी आपने स्विच का तो पैसा बचा लिया, but bill जो भी electricity का आएगा, that is going to be much more higher. Always remember this, okay? Also, the disadvantage number 2, if one thing goes bad, the entire series will go bad. क्योंकि एक के साथ में दूसरी कनेक्टेड है, so on and so forth. एक जब तक करंट को आगे पास नहीं करेगा, दूसरे पर भी नहीं जाएगा। So this is the derivation of the series connection. फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीरीज के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट देन कम्स द पार्ट, सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट रिमेन्स कांस्टेंट, बट पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। पोटेंशियल कीप्स ऑन चेंजिंग। सो आप कीप्स के बजाय आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल वेरीज। सो पोटेंशियल इज नॉट सेम, रेजिस्टेंस इज नॉट सेम, बट करंट रिमेन्स द सेम, ओके। अब आते हैं गाइस द सेकंड काइंड ऑफ कनेक्शन विच इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन। नाउ पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ गाइस, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना कल संडे है, सो टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट, ओके। आज ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर और अपलोड हो गया है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेक्चर अपलोड हो जाएगा, एंड देन कल तो जान निकलनी पक्की है बेटा, हो मजाक कर रहा हूं, डोंट वरी। चलो, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल, सो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कनेक्शन?
जब सोर्स का पॉजिटिव या जो भी बैटरी या सेल है उसका पॉजिटिव हर एक डिवाइस के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। कैसे? लेट्स टेक देयर इज द सेल, मान लो मैंने इसको बोला R1, ओके। अभी केवल समझाने के लिए R1 R2 R3 लिख रहा हूं ना। पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है, यदि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, ये इसके भी पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, इसके भी पॉजिटिव से ही कनेक्टेड होगा। भाई ये वाला पार्ट नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, और ये पूरा का पूरा वाला पार्ट इससे कनेक्टेड होता है। अब कॉमन सेंस सोचो, यदि करंट गया, if the current will start flowing from this particular terminal, because current will always flow from positive terminal of the cell towards the negative terminal, while the electrons will always flow from negative terminal towards the positive terminal. फिर हम ऐसे उल्टा क्यों बोलते हैं? बिकॉज कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जब भी ऐसे जाएगी विच इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ में आएंगे, लाइक दैट। ओके, ये गया पॉजिटिवली चार्ज यहां से, जब ये यहां तक पहुंचेगा नो प्रॉब्लम, बट उसके बाद में ही विल गेट कंफ्यूज्ड, यार जाना कहाँ था, यहाँ जाओ कि यहाँ, एक काम करता हूँ कुछ यहाँ जाओ कुछ यहाँ जाओ, so he'll say somewhere somewhat over here and somewhat over here। तो ये करंट जो अभी तक यहाँ पर आया था, ये कुछ I1 और I2 दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो इस ब्रांच पे कितना रहेगा I1, इस ब्रांच पे कितना रहेगा I2, फिर इस ब्रांच पे कितना रहेगा कुछ और, and so on and so forth। Did you understand this? तो इसका मतलब है पैरेलल कनेक्शन के अंदर करंट विल डिवाइड, करंट रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होना चालू हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर। यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो करंट उस जगह पर ज्यादा जाएगा जिस जगह पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कॉमन सेंस। ओके, नाउ सो करंट विल डिवाइड, तो करंट विल डिवाइड इन द रेशियो, जिस भी रेशियो में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, करंट तो डिवाइड हो गया, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल? Now potential will remain same। सर बट पोटेंशियल क्यों सेम रहेगा? खुद देख लो, पोटेंशियल यहां से गया, अब की बार कोई एक साथ रेजिस्टेंस तो कनेक्टेड ही नहीं है, यहां से गया आ गया पोटेंशियल वापस, यहां पे गया आ गया पोटेंशियल वापस, यहां से गया आ गया पोटेंशियल वापस। सो जितना पोटेंशियल यहां पर रहेगा उतना ही पोटेंशियल यहां रहेगा, उतना ही पोटेंशियल यहां रहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल विल रिमेन सेम। अब यदि मुझे यहां पर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? आई विल राइट समथिंग लाइक दिस, दैट इज V, मतलब मान लो V, देन कम्स अगेन V, देन कम्स अगेन V, तीनों में V सेम, बट करंट का क्या हो जाएगा? I1, I2, I3। Do you get this? Now let's do the derivation in the same fashion जैसे पहले किया था। कॉमन सेंस से सर्किट के अंदर क्या चीज चेंज हो रही है? रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम है, बट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे करंट को, तो करंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर I1, I2, I3, तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल करंट I total should be equals to I1 प्लस I2 प्लस I3। सर लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो आपने केवल 2 ही लिया था, तो आप यहाँ से इस वाले को हटा दो। पिछले क्वेश्चन में सर 3 लाने हो तो आप वहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना। स्टार्टिंग में क्या करोगे? दैट इज I total should be equals to, सॉरी V total should be equals to V1 प्लस V2 प्लस V3। और अभी इन पैरेलल कनेक्शन क्या करोगे? IT इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I total की जगह पर लिख देता हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? सलमान खान की मूवी वीर, सो I should be equals to V अपॉन R, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो IT की जगह पर क्या हो जाएगा? V टोटल अपॉन R टोटल should be equals to I1 की जगह पर V1 अपॉन R1, I2 की जगह पर V
अपॉन R2 V अपॉन R3। सर आपने V क्यों लिखा? बिकॉज V तो चेंज हो ही नहीं रहा, पोटेंशियल विल रिमेन सेम। गॉट इट? सो नाउ यहां से मैंने क्या निकाल दिया? VT अपॉन RT। तो मैंने यहां से V को कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V टोटल जितना था वही तो V था, दोनों के दोनों तो सेम ही रहेंगे पैरेलल में, सो दिस विल कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा? 1 अपॉन R total should be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, and that's all guys, it's done. Answer, no problem. अब इसका मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ मैजिकल चीज होती है। मैजिकल ऐसा क्या होता है मैजिकल? लेट अस सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज करो मेरे घर में, आपके घर में, किसी के भी घर में 4 बल्ब लगे हैं, 4 बल्ब्स। ओके, सो देयर आर 4 बल्ब्स एंड ईच हैव गॉट अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना? से 10 ohms। 4 बल्ब्स ऑफ 10 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब आपको कैलकुलेट करना है सीरीज में एंड सेकेंड पैरेलल में व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, OHM। ओके, आपको बाय द वे निकालना है कि यदि चारों के चारों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, और पैरेलल में आएंगे तो कितना आएगा। लेट्स चेक। सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? R सीरीज या R टोटल should be equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4। 4 लगे थे, let's add them up। 10 plus 10 plus 10 plus 10, it should be equals to 40 ohms। ये आ चुका है सीरीज का कनेक्शन का आंसर। तो सीरीज में कितना हो गया? 40 ohms। अब मान लो यही 4 बल्ब्स मैंने पैरेलल में लगाए, अब की बार देख लेते हैं। So R parallel should be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4, और यहाँ पर भी 1 upon R total। करेक्ट? पर इसको R total की जगह R parallel कर देते हैं। Let's see, 1 upon R parallel should be equals to 1 by 10 plus 1 by 10 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10। कॉमन सेंस गाइस, ऐसा बच्चों की तरह मत करना। आपको मालूम है 1 बाय 10 4 बार लिखा है तो 4 बाय 10 हो जाएगा। सो 1 बाय R पैरेलल शुड बी इक्वल्स टू 4 बाय 10। 2 2s are 4, 2 5s are 10.4। और गाइस वापस से उतना भी करने की जरूरत नहीं है, 4/10 करोगे तो 0.4 ही आता है। तो 0.4, और या मैंने इसी को उल्टा कर दिया, यहीं पर ही मैंने इसको पॉइंट में कट ही नहीं करा। ये कितना है? 5/2 ही है आपके पास में। 2 2s are 4, 2 5s are 10, रेसिप्रोकल क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और our resistance in parallel should be equals to 5/2 should be equals to 2.5 ohms। मैजिकल है सीरियसली, ये मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी में बहुत काम में आता है। चेक करो, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस कितना था? 40 ohms, which was more than the individual resistance of the bulb। मतलब टोटल का आंसर सिंगल बल्ब से भी ज्यादा आया है। बट शॉकिंगली जब आप चीजें पैरेलल में लगाते हो, सीधा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2.5 ohms, जबकि हर एक बल्ब कितने का था? 10 ohms का, बट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2.5 ohms। इट शॉकिंग। इसका मतलब है यदि आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो हर चीज क्या हो जाएगी? उसका रेजिस्टेंस कम होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब वायर कम गर्म होंगे, इसका मतलब है हीट कम लिबरेट होगी, इसका मतलब है लॉस कम होंगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सीरीज कनेक्शन में चीजें आपको स्टार्टिंग में कॉस्ट में जरूर लगेगा कि आप पैसे बचा लोगे, बट लॉन्ग रन के अंदर बहुत पैसे लगते हैं। ऑन द अदर हैंड पैरेलल के अंदर यू कैन सी दैट। So now comes an important question either from CBSE or from state or from any of the board in India.
which circuit will allow you to get total resistance less than individual resistance? Answer is parallel connection. Which connection will allow you to gain resistance more than the individual one? Answer will be series connection. That is so simple. So guys, very important part ध्यान रखना, सीरीज और पैरेलल के अंदर बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है. लॉसेस ज्यादा किस में होंगे? सीरीज में. लॉसेस कम किस में होंगे? पैरेलल के अंदर. ध्यान रखना. नाउ टॉपर्स की गलती, वो लोग हमेशा यहां तक आंसर लाते हैं, उसके बाद में इसको रेसिप्रोकल करना ही भूल जाते हैं. एंड रिमेंबर द यूनिट इज ओम. सो नाउ कम्स द मेन पार्ट. आपके घर में डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो कैसे होती है? पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज यू ऑलवेज वुड बी हैविंग सेपरेट स्विचेस फॉर सेपरेट डिवाइसेस. फ्रिज के लिए अलग, टीवी के लिए अलग, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई. नाउ वेरी सिंपल पार्ट. कभी भी भूल से एक बहुत हैवी डिवाइस को कभी भी किसी बल्ब या छोटे से डिवाइस के साथ में सीरीज में कनेक्ट मत कर देना. क्यों? सपोज करो मेरे पास में एक गीजर है, रेजिस्टेंस से शो कर दिया है, और ये गीजर है कुछ 2 किलोवाट्स का. अभी बताता हूँ ये वॉट क्या होता है. एज ऑफ नाउ 2 किलोवाट्स का है, या और सिंपल वर्ड्स में इसका रेजिस्टेंस है करीबन 100 ओम्स, समथिंग लाइक दिस. और मैंने यहीं पर ही एक छोटा सा एक बल्ब कनेक्ट कर दिया. ओके, समथिंग लाइक दिस. एंड इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड से 10 ओम्स. कॉमन सेंस है, गीजर को बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पहले इसको कम. अब क्या होगा? यहां पर से क्या करेगा? जब करंट पास होना चालू हो जाएगा, सो इस जगह पर भी उतना ही करंट जाएगा, बिकॉज सीरीज में तो करंट कांस्टेंट रहता है. तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा. सोचो, जितना गीजर को करंट चाहिए उतना करंट इसको भी चाहिए होगा. बल्ब तो फ्यूज ही फट ही जाएगा इतना करंट लेगा. तो दैट इज द रीजन वाई कभी भी एक बहुत हैवियर डिवाइस को कभी भी एक स्मॉलर डिवाइस के साथ में कभी कनेक्ट नहीं करते. गॉट इट? सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन. इन सीरीज कनेक्शन करंट विल नॉट गेट डिवाइडेड, it will remain constant. But in parallel connection, current will keep on getting divided, so current will change. In series connection, potential will keep on dropping or potential will change. In parallel connection, potential will remain the same. डेरिवेशन करने का स्टार्टिंग तरीका, जो चीज चेंज हो रही है उसी को टोटल करते जाओ, फॉर्मूला डालो, वी डालो, आंसर आ गया. गॉट इट? सो दिस इज द पार्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. डोमेस्टिक कनेक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, वायरिंग हमेशा पैरेलल में करते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड एमीटर. व्हाट इज एन एमीटर? एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट. ओके, so emitter is a pretty sensitive device. It is used to measure current in a circuit. Then what is galvanometer? Galvanometer is also a device which is used to measure current in a circuit. But galvanometer is highly sensitive and it will always give a full scale deflection. What do you mean by full scale deflection? वो जो उसका जो निडल होती है, वो निडल जब भी चालू करोगे पूरी ऐसे चली जाती है, घूम जाती है. आपके यहाँ पर यदि कभी कोई इलेक्ट्रिकल कोई रिपेयर कोई गाय आता है तो आप देखते हो उसके पास में कैसे छोटा सा एक डिवाइस होता है, 2 उसमें से वायर्स निकले होते हैं. कीप ऑन टचिंग दैट एंड यू गेट द रीडिंग. सो दैट विल बी आइदर एमीटर और गैल्वेनोमीटर. ओके, गैल्वेनोमीटर का एक ही डिसएडवांटेज है, वो खुद बहुत सारा रेजिस्टेंस खाता है, उसके खुद के लॉसेस बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए आमतौर पे एमीटर को यूज करते हैं. तो फिर गैल्वेनोमीटर को कब यूज करेंगे? जब भी कभी हमें काफी सेंसिटिव फुल स्केल डिफ्लेक्शंस चाहिए होंगे तो वी विल यूज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर और एमीटर हमेशा उनके सिंबल्स क्या होते हैं? दिस इज गैल्वेनोमीटर. व्हाट इज एमीटर? वंस अगेन द सेम, अ करंट मेजरिंग डिवाइस. दोनों के दोनों हमेशा सीरीज में लगते हैं. Galvanometer and ammeter will always be connected in series to whatever you need to find it out.
हमेशा ध्यान रखना. While potentiometer, sorry, I'm saying potentiometer, it is voltmeter, will always be connected what? In parallel connection. So V for volt, potential always parallel. P for potential, P for parallel. Potential हमेशा parallel के अंदर connected होता है. क्यों? Because potentiometer, फिर से potentiometer, voltmeter will always give you a constant reading. Because parallel connection में potential constant होता है. सीरीज में कौन कनेक्टेड होगा? करंट, बिकॉज करंट कांस्टेंट होता है. इट्स दैट सिंपल. ओके, सो व्हाट डज द वोल्टमीटर मेजर? वोल्टमीटर मेजर्स द वोल्टेज और वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट. ओके, नाउ ओके, सो वी विल स्टॉप इट राइट ओवर हियर. कल के टेस्ट में ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं. सो प्रिपेयर नाइसली गाइस. ओके, and do the trigonometric table because वो तो आएगा ही आएगा. Thank you so much guys. Have a nice day. Bye bye.